So in the previous class we have started the discussion about the quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0. That's the quadratic equation, and we have discussed about the derivation of the result x is equals to minus b plus minus of root over b square minus of 4ac. So in the previous class we have started the discussion about the quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0. We have derived the result. In fact हमने derivation किया था x is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. That b square minus 4ac is nothing but discriminant. b square minus 4ac जो है that is nothing but the discriminant of that quadratic equation, right? So x is going to be equals to minus of b plus minus root over d divided by 2a. We have discussed that it is going to be an important topic for complete mathematics. पूरी mathematics में required है class 11th as well as class 12 दोनों के लिए in fact. So discriminant b square minus 4ac, and we have discussed there are going to be two roots. One of the root is minus b plus root over d divided by 2a, and the second root is minus b minus of root over d divided by 2a, and we have discussed the different conditions. If roots are real, what do you suggest? Roots are real. Roots अगर real हैं, d जो होगा that d is greater than equals to 0. Yes, क्योंकि greater than equals to 0 इसलिए है कि roots अगर real हैं तो real and distinct as well as real and equal दोनों possibility है यहाँ पर. Real and distinct as well as real and equal both. So d greater than equals to 0, right? अगर ये कहा जाता है if roots are distinct, real and distinct, तब उस केस में क्लियर है कि उस डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तब d जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा और दो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ. इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बिल्कुल ठीक बात है. रूट्स आर रियल एंड इक्वल के केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. जो d है वो इक्वल टू 0 होगा. सेम रूट्स होंगे उस केस में, d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स आर माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a, 2 कॉमा 2, 10 कॉमा 10, 1 कॉमा 1, माइनस 2 कॉमा माइनस 2, ऐसे इक्वल रूट्स होंगे. इफ रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स के केस में d इज गोइंग टू बी लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू d लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ? d लेस देन 0 से मतलब हुआ कि नेगेटिव वैल्यू 0 से लेस मतलब नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर, बिकॉज आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा उधर पे. आयोटा अगर इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली इट विल बिकम इमेजिनरी रूट्स. इसके बारे में तो हमने डिस्कशन किया था. विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट दोज कंसेप्ट्स. एट द सेम टाइम इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस अबाउट this is a quadratic equation having two roots. as since it is a quadratic, दो roots होंगे इसके. cubic equation there are going to be 3 roots there. 4 degree equation या biquadratic equation होगी तो there are going to be 4 roots there. और second degree equation है, quadratic equation है, दो roots हैं alpha और beta, तो there are two relations which are existing between the two roots, and those two relations are sum of roots as well as product of roots, and that sum of roots is simply with minus of coefficient of x which is b divided by coefficient of x square minus of b by a. डेरिवेशन से ही हमने बात करी थी और एक नहीं दो अलग अलग तरीके से बात करी थी. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज c by a. फाइन. एट द सेम टाइम एक और जो हमने कहा था, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, दैट इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, राइट? दैट वाज नथिंग बट x square minus of alpha plus beta into x plus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to
0. दैट इज अबाउट द इक्वेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ये सारा डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया था हमने ना. अभी आज हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रियल रूट्स. अब रियल रूट्स में क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रियल रूट्स के केस में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स की बात होगी. चलिए कर ही लेते हैं. इतना तो हमारा प्रीवियस क्लास का डिस्कशन था. ठीक है, दैट इज ओके. दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. So roots are real and distinct. What we have discussed, if roots are real and distinct, in that case d is positive. Positive d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है. अब रियल में दोस्तों दो बातें हो सकती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात. रैशनल रूट्स एज वेल एज इर्रेशनल रूट्स. क्योंकि व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद अ रियल नंबर, इफ यू रिमेंबर, रियल नंबर्स में क्या नंबर्स इंक्लूडेड हैं? तो रियल नंबर में डेफिनेटली रैशनल नंबर एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स बोथ आर इंक्लूडेड देयर. रियल नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो रियल नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर एज वेल एज इर्रेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, राइट? सो रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, अब तो दोनों केस की बात करना पड़ेगी. सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a. इफ आई आस्क यू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वो तो ठीक है, बोले सर डी पॉजिटिव, अच्छी बात है. अब रियल एंड डिस्टिंक्ट में अगर मैं आपसे कहता हूं कि रूट्स आर रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स को क्या कहोगे? रैशनल रूट्स को भी तो रियली कहोगे आप. तो इफ आई आस्क यू रूट्स आर रैशनल रूट्स, कैन यू कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ डी? आप कहोगे सर डी की क्या कंडीशन? आपने तो लिखा हुआ है. बोले सर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो बोले सर डी पॉजिटिव होता है. डी पॉजिटिव होगा तभी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. थोड़ा सा और कैटेगराइजेशन कर रहा हूं मैं यहां पर कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी पॉजिटिव. अब मैं कहता हूं रूट्स आर रैशनल रूट्स, डी के बारे में कुछ और बात. डी पॉजिटिव तो रहेगा तो तय बात है, क्योंकि डी नेगेटिव होने पर इमेजिनरी रूट्स की बात हो जाती है. डी पॉजिटिव है वो तो ठीक है. रैशनल कब होगा? रैशनल मतलब नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर पाए. डी की क्या कंडीशन होना चाहिए सो दैट वो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए? दोस्तों डी के बारे में जब बात की जाए, अगर आप लोग सोचते हैं, ठीक सोच रहे हैं, डी मस्ट बी पॉजिटिव तो रहेगा, तय बात है. डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. बोले सर समझ में नहीं आई बात. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ दोस्तों, लाइक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं एंड इफ इट इज x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू समथिंग वॉट एवर इज देयर, जो भी है, -2 प्लस माइनस रूट 25 बाय 2. What is the value of d here? 5. D is not 5. D is 25. D 25 है और 25 is a perfect square. तो 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 25 का स्क्वायर रूट लेने पर it will become 5. और जब d x will become what है ना, if -2 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2, एक रूट प्लस साइन के साथ में आएगा, -2 प्लस 5 बाई 2, एक आएगा माइनस साइन के साथ में -2 माइनस 5 बाई 2. दोनों रैशनली होंगे. -2 प्लस 5 3 बाई 2 रैशनल नंबर है और -2 माइनस 5 -7 बाई 2 रैशनल नंबर है. तो रैशनल रूट्स के लिए d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. 25 64 का स्क्वायर रूट विल बिकम 8. तो पॉजिटिव है तो तय बात है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो. तब रूट्स कैसे रूट्स होंगे? रैशनल रूट्स होंगे. आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, एट द सेम टाइम इफ डी पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दोस्तों अगर मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ऑफ रूट 19, ये इमेजिनरी रूट थोड़े ना कहेंगे आप. डी की वैल्यू क्या है?
19 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। डी अगर पॉजिटिव है तो कैसे रूट्स? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन अब की बार डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो क्या? अब क्या रूट्स क्या क्या होंगे? बोले सर एक रूट होगा -2 प्लस रूट 19 और एक होगा -2 माइनस, कैसे क्या हुआ? इर्रेशनल रूट्स आर देयर, हैं तो रियल, तय बात है। ये क्या इमेजिनरी नंबर है क्या? रेशनल नंबर भी नहीं है, ये इर्रेशनल रूट्स की कंडीशन हो गई। इर्रेशनल रूट्स, और इर्रेशनल रूट्स के लिए डी इज नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पहले सुन लीजिए सुनिए। तो डी पॉजिटिव में हमने दो केसेस की बात करी। डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो तय बात है, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तब तो वो रियल एंड इक्वल। अगर डी 0 बन जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 बन जाता है तो रियल एंड इक्वल। डी पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव में हमने दो बातें करी कि रूट्स, रेशनल रूट्स कब होंगे? जबकि डी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25, 64, 49 स्क्वायर रूट लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 49 का स्क्वायर रूट 7, समझ रहे हो क्या? तो रेशनल रूट्स आएंगे। लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 19 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब कैसे रूट्स आएंगे? इर्रेशनल। कैसे रूट्स होंगे? इर्रेशनल रूट्स होंगे। -2 प्लस माइनस रूट 19, तो -2 प्लस रूट 19 और -2 माइनस रूट 19। इर्रेशनल रूट्स के बारे में एक और बात आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लेट्स से अगर ये 19 की जगह 31 होता, वो भी इर्रेशनल है। -2 प्लस रूट 31 -2 माइनस रूट 31, आप ये समझ सकते हैं उस केस में कि इर्रेशनल रूट्स अगर हैं तो इर्रेशनल रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं इफ वन ऑफ द रूट इज p प्लस रूट ओवर क्यू, सुनिएगा इस बात को ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट p प्लस रूट ओवर क्यू है, रूट ओवर क्यू इर्रेशनल नंबर है ना, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब, तो p प्लस रूट ओवर क्यू एक इर्रेशनल रूट है, तो यह तय है, क्या तय है? कि जो दूसरा रूट होगा वो भी इर्रेशनल ही होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अगर एक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस ऑफ रूट क्यू होगा। आ रहा है क्या समझ में? इफ वन ऑफ द रूट इज p प्लस रूट क्यू, देन सेकेंड रूट इज ऑलवेज गोइंग टू बी p माइनस रूट क्यू। अगर एक रूट -2 प्लस रूट 19 है तो दूसरा तय बात है कि -2 माइनस रूट 19 होगा, है ना? तो ये कहां डिस्कशन कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल रूट्स ओनली। रियल एंड डिस्टिंक्ट में रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल होते हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कशन हम थोड़ा सा लेट करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात फिर भी यहां पर मैं समझा दूं आपको, ताकि क्योंकि बार बार डिस्कशन में आएगा इमेजिनरी नंबर वाला टर्म्स भी। तो रूट्स इमेजिनरी हैं तब कब? जबकि डी लेस देन 0 है। और d लेस देन 0 की अगर बात की जाती है तो इन केस ऑफ d लेस देन 0, अगर d नेगेटिव है, मान लीजिए इफ x d लेस देन 0, इफ x इज -2 प्लस माइनस रूट ओवर -19, लेट्स से लाइक दिस, ये रूट्स आ रहे हैं -2 प्लस माइनस रूट 19 और रूट ओवर -19। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है -19, नेगेटिव नंबर है। d अगर नेगेटिव नंबर है तो ये तय बात है, क्या तय बात है? d अगर नेगेटिव नंबर है तो इमेजिनरी रूट्स की बात हो जाती है। कैसे इमेजिनरी रूट्स? क्योंकि अभी यह सिस्टम से आप परिचित नहीं है। रूट ओवर -1 को हम लिखते हैं आयोटा, और तब जो रूट्स होंगे दोस्तों -2 प्लस रूट 19 आयोटा और -2 माइनस ऑफ रूट 19 आयोटा, एक प्लस साइन एक माइनस साइन। और एक और बात यहां पर भी क्लियर हो जाती है कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन, जैसे इरेशनल रूट्स पेयर्स में आए थे ना, ठीक वैसे ही इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। इफ वन ऑफ द रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, द सेकेंड रूट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये तय बात है। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस ऑफ आयोटा बीटा
होगा, राइट? Now look for two simple questions. Find the value of k for which the equation has real and equal roots. If I talk about real and equal roots, d must be equals to 0. Discriminant की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए. If I look for the first one, solution for the first one, तो d की वैल्यू 0 करेंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac को आपको इक्वल्स टू 0 करना है. पहले यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक प्रॉपर्ली इन टर्म्स ऑफ x. बोले सर इसमें x दिख नहीं रहा है. ये जरूर दिखेगा, देखिएगा. इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4k इंटू एक्स प्लस, समझ रहे हो क्या? अरेंज कर रहा हूं टर्म्स को. 4k एक्स प्लस k इंटू के माइनस 1, k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दैट्स अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक होगी, राइट? और अब इसका d 0 कर दीजिए. अच्छा, d 0 करने का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. बोर्ड पे देख लीजिएगा. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ b हियर? 4k. देख लीजिए बोर्ड पे. 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? oh इट्स नॉट 2. ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट के बराबर है. इट्स नॉट ओनली 2, है ना, जो x से फ्री है. टर्म ऑफ x स्क्वायर, टर्म ऑफ x एंड देन इट्स अ कांस्टेंट टर्म व्हिच इज फ्री फ्रॉम x. k into k minus 1 plus 2 equals to 0, right? 16k square minus of simple multiplication square minus k, तो minus of 4k square, right? Minus k plus 4k minus of 8 equals to 0. चेक कर लीजिएगा. प्लस माइनस 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर विल बिकम 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0. और वी कैन से इफ आई टेक 4 कॉमन, k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ k प्लीज? अभी तो फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, या माइनस बी प्लस माइनस से निकाल लीजिए. माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, या फैक्टराइज कर लीजिए. कर सकते हो ना. क्या क्या वैल्यू आ रही के की? 2/3, 2/3 या माइनस 2/3? माइनस 2/3, 2/3 एंड थर्ड सेकेंड वन सॉरी माइनस 1. चेक कर लीजिएगा सभी लोग प्लीज. अरे फैक्टराइजेशन तो आपको करना पड़ेगा ना. 3k स्क्वायर 3 इंटू 2 6, 3 और 2 ऐसे बना लेंगे आप इसको. चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए. सेकेंड वन की बात करें, k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. d must be equals to 0. Again, roots are real and equal. So b square minus 4ac. a क्या है? What is the value of a? ये तो देख पा रहे हो आप. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म k plus 1 into equals to 0. 4 times k minus 1 whole square minus of 4 times k plus 1 equals to 0. यहाँ तो सीधे सीधे इक्वल टू साइन है, इनइक्वालिटी का कोई टेंशन नहीं. 4 कॉमन लीजिए, कैंसिल कर दीजिए. k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस ऑफ k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. बढ़िया है. k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k, k equals to 0 और k equals to, I think easily you are getting the result. सिंपल करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 करना है, बस इतना ही है. बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का सवाल. अब आप फैक्टराइजेशन में एरर कर दें या आप टर्म्स नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी. बहुत बेसिक लेवल की बात हो गई है ना, करना चाहिए अपने को. नाउ लुक फॉर ए सिंपल क्वेश्चन. इफ -4 is the root of the equation x square plus px minus 4 equals to 0,
and the second equation x square plus px plus k equals to 0 has equal roots, find the value of k. क्या सजेस्ट करते हो आप, क्या करना? क्या 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 क्या? -4 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. तो ये आप ठीक सोच रहे हैं कि -4 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, तो -4 इज क्लियरली गोइंग टू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन. यही बोल रहे हैं, -4 अगर इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, अच्छी बात है. तो -4 को जरूर आप सेटिस्फाई कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. यू विल बी गेटिंग -4 स्क्वायर प्लस p टाइम्स -4 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू को -4 रख दिया मैंने, -4 इज द रूट ऑफ दैट 16 -4p. आप सभी लोगों ने कर लिया लगता है, शायद, अच्छी बात है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p यू आर गेटिंग हियर? 3. बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी आपको p की वैल्यू मिल गई. नाउ द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस px प्लस k. p की वैल्यू पुट करो ना यार, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0. और उसने कहा इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो अगेन यू आर गोइंग टू कीप d इक्वल्स टू 0. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. so k is nothing but 9/4. and all of you are getting this result I think easily. -4 is the root of that. root का मतलब जो सेटिस्फाई करे. हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमने कहा अल्फा और बीटा रूट्स है इक्वेशन के. रूट्स का क्या मीनिंग? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. जिन रूट्स को रखने के ऊपर दैट इक्वेशन विल बिकम 0. अल्फा और बीटा रूट से मतलब अल्फा को इक्वेशन में पुट किया इन प्लेस ऑफ x, बीटा को इन प्लेस ऑफ x पुट किया, विल बी गेटिंग इक्वल्स टू 0. ठीक है ना? नाउ द क्वेश्चन इज, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus px plus q equals to 0. quadratic equation is there, x square minus px plus q equals to 0. अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं. आपसे क्या 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 इन्फॉर्मेशन कही गई है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहली बात, when we say x square minus of px plus q equals to 0, alpha and beta are the roots of that equation. Alpha and beta are roots. So alpha और बीटा रूट्स दिए, इनफैक्ट दिए उसने. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा विच इज नथिंग बट द सम ऑफ रूट्स विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ b बाय a. तो व्हाट इज दैट माइनस ऑफ b बाय a? माइनस ऑफ b बाय डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या मैं? बताइए क्या लिखना, कोई टेंशन तो नहीं? व्हाट अबाउट अल्फा बीटा? दैट इज नथिंग बट c बाय a विच इज नथिंग बट q. एज फार एज फर्स्ट रिजल्ट इज कंसर्न, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, शायद डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए. दैट इज सिंपली after taking the LCM, that is alpha plus beta divided by alpha beta, and all of you are doing this, that it is nothing but sir it is p by q. सभी लोगों को पता लग जाता है, कोई खास बात नहीं. If I ask you about alpha square plus beta square, and if it is alpha square plus beta square, so alpha square plus beta square, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अपने पास अवेलेबल है, उसी से रिलेटेड बात करना पड़ेगी. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी इज देयर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बहुत सिंपल सी बात कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. राइट, कोई टेंशन तो नहीं. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p. So it is p square minus of 2q. Simply that is the value of alpha square plus beta square, right? If I ask you alpha cube plus beta cube, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर पूछा गया है, अगेन जैसे यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज किया, लाइकवाइज यू कैन थिंक अबाउट a प्लस बी होल क्यूब की बात कर लो. बताना जरा, a प्लस बी होल क्यूब, चलो लिखते हैं. That is nothing but a cube plus b cube plus 3ab, a plus b. बड़ा भारी फॉर्मूला तो नहीं हुआ? We want a cube plus b cube, या we want alpha cube plus beta cube. That will be equals to alpha plus beta whole cube minus of 3 alpha beta
अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है, उसके टर्म्स में लेके आ गए। नाउ पुट दोज वैल्यूज देयर, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, सभी को समझ में आ रहा है ना पक्का? सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पी क्यूब माइनस ऑफ 3 क्यू एंड अल्फा प्लस बीटा इज, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज बिकमिंग पी क्यू माइनस ऑफ 3 पी क्यू, राइट? बोले सर अब अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4, बोले सर यहीं पे अटक गए बात। अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 कोई अटकने वाली बात नहीं, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी हेल्प से आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया था, दैट वाज ए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लाइकवाइज अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। सिंपल सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यार, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब की कहां दिक्कत है ना? आ रहा है ना समझ में? जल्दी तो नहीं हो रहा ना? आ रहा है ना? तो अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट माइनस ऑफ, क्या माइनस ऑफ? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चेक कर लीजिए। बोले सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करना? फिलहाल तो हमें दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू इज अवेलेबल हियर। बोले सर नहीं होती तो क्या करते? निकालते। यहाँ तो अवेलेबल है, ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते? तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना होता, अभी तो रेडीली अवेलेबल है तो यूज कर लें उसको, और क्या कर लें ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी हमने, दैट इज पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2q होल स्क्वायर ऑफ दैट माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज q स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू q है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विल बिकम q स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, उसमें कहां दिक्कत है, ठीक है। p रेस टू पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस ऑफ 2q स्क्वायर एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन के लिए हमने बात करी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कई जगह लगेगा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो ठीक है यार, कहाँ लोड है ना? दैट इज अ सिंपल आइडेंटिटी दैट वी हैव यूज्ड हियर। अवेलेबिलिटी क्या है? सम ऑफ रूट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 2। देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक अप्रोच ये हो सकती है जो आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और अप्रोच इज ओके, अप्रोच इज करेक्ट, दैट इज आप क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मान लीजिए रूट्स सिंपल से रूट्स हैं तब तो बात बन जाएगी, समझ रहे हो आप? इफ यू ट्राई लाइक कि बोले सर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हम दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। मान लो रूट्स 2,3 3,5 है, तब तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़े इरेशनल रूट्स फंस गए तब तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए रूट्स 2 और 3 आ गए, तब तो आप कर लेंगे आसानी से कि अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3, तो इक्वेशन निकाल लेंगे आप। लेकिन अगर इरेशनल आए तो फिर परेशान हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम ये करें कि ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। So alpha plus beta can be written as, sum of roots can be written as minus of b by a. What is that minus of b by a? 3 by 2 and alpha beta, which is nothing but the product of roots, which is c by a, minus of 6 by 2, which is minus of 3. ये sum of roots और ये product of roots. Fine. अब उसने कहा इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो। यार हम जानते हैं इक्वेशन अगर पूछेगा, इट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अब उसने कहा ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो. देखिएगा आप दोनों लोग भी, लास्ट रो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, उसने पूछा दो रूट्स दिए, बोले इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. राइट. अब जहां तक सम ऑफ रूट्स की बात आती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया दोस्तों, कोई खास बात नहीं, आ रहा है समझ में. तो अपन प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. आपको क्या लगता है, क्या अननोन है जिसको हम फाइंड आउट कर लें हमारा काम बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हमें नोन है, अल्फा बीटा भी नोन है, क्या और पता लगा लें हमारा काम बन जाएगा? आप कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ले आओ, बात बन जाएगी, क्योंकि अल्फा बीटा तो ऑलरेडी आपको नोन है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर बात की जाए, दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हैं तो कैसे कैलकुलेट करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सेम वी आर गोइंग टू यूज हियर. समझ रहे हो क्या? द सेम आइडेंटिटी आई एम यूजिंग हियर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. राइट. सो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा minus of 3. Right? It will become 9/4 plus 6, 24 plus 9, 33/4. Put those values here. X square minus of alpha square plus beta square 33/4 plus 4 into x अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 33/4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. कैन यू टेक द एलसीएम? सॉल्व कर पाओगे आप उसको एलसीएम लेके? सो इट इज बिकमिंग एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, after taking the LCM, 4 into 4 16, 49/4 into x plus what that result is coming after taking the LCM, 33 plus 8. ठीक है ना? 33 plus 8 plus 18, what is that? 33 plus 8 plus 18, 59 divide by 2 equals to 0. Take the LCM, you will be getting the result 4x square minus of 49x plus 2 into 59 equals to 0. चेक करिए, सेम रिजल्ट था क्या आपका? 69 है. चेक कर लीजिए प्लीज. व्हाट अबाउट दैट सम इज कमिंग एज 33. मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे. 33 प्लस 8 41 8 41 33 प्लस 8 41 प्लस 18 59. कैलकुलेशन एरर नहीं. टेक द एलसीएम, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट. कैलकुलेशन एरर थी क्या? आप लोगों ने जो किया था उसमें कुछ एरर थी? अभी क्लियर है क्या? तो इसमें क्या किया हमने? रूट्स नहीं फाइंड आउट किए हमने. वी हैव यूज्ड हियर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. अगर रूट्स रैशनल होते तब भी काम आसानी से हो जाता, लेकिन रूट्स अगर इरेशनल आएंगे तब तो दिक्कत दे जाएंगे. तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा. आ रहा है समझ में?
नहीं, आंसर तो आ जाएगा, आएगा, वो तो तय बात है, नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कर सकते। हाँ, इरेशनल कई बच्चे निकालते हैं उससे, आप भी ट्राई कर रहे थे आप लोग, आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए रूट्स रैशनल होते या इंटीजर होते, रैशनल में भी इंटीजर होते, तो आपका काम खटाखट हो जाता। एक 2 आता, एक 3 आता, तो आप कहते सर 2 स्क्वायर प्लस 2 एक रूट हुआ और 3 स्क्वायर प्लस 2 दूसरा रूट हुआ, आप फटाफट रिजल्ट लिखते। लेकिन इरेशनल के कारण थोड़ी परेशानी हो गई। क्लियर है क्या? Now a simple question, you have to prove that the roots of the equation, a quadratic equation has been given to you and roots of the equation are equal. So roots of the equation are equal, तो ज़्यादा डाउट नहीं है, roots अगर equal हैं इसका मतलब we have to prove that discriminant of that equation must be equals to 0. तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट करने वाले हैं, we are going to calculate the d which is nothing but b square minus of 4ac, और हम बता देंगे अगर d की वैल्यू 0 आती है तो बात खत्म, रूट्स इक्वल हैं। व्हाट इज b? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस प्रॉपर्ली समझने वाली बात है, एरर नहीं होना चाहिए। 4. व्हाट इज a? A is nothing but coefficient of x square. C equals to, सॉरी ये हमें प्रूव करना है कि is equals to 0, कैंसिल हो जाएगी मतलब पूरी टर्म। D 0 आ गया तो हमारी बात बन जाएगी कि रूट्स इक्वल है और बहुत लोड नहीं है। -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक लाइन का सवाल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b a माइनस b एन स्क्वायर ऑफ दैट। अगले स्टेप में 0 लिख दें और क्या, खत्म बात। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी ए माइनस बी एन स्क्वायर ऑफ दैट। -2 का स्क्वायर ऑलरेडी 4 हो गया, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, d इज कमिंग एज 0, ज्यादा मत सोचिए, रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बीन गिवन टू यू एज x स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 into x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर। A quadratic equation is there. Find the value of lambda for which the roots are real and find the value of lambda for which the roots are imaginary. So सबसे पहली बात करते हैं solution for the first one. Real roots. If I ask you about the real roots, condition of real roots of a quadratic equation. Real roots में आप confuse नहीं होना है, real में real and distinct as well as real and equal both are inclusive. तो रियल एंड इक्वल एज वेल एज रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों अगर इंक्लूसिव है तो रियल रूट्स के लिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स a is nothing but coefficient of x square 1, c is nothing but lambda। आप वैल्यू प्लेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ये देखो सभी लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac आर यू इन ए पोजिशन टू पुट द वैल्यूज, a b c की वैल्यू प्रॉपर्ली रख पा रहे हैं ना सभी लोग। माइनस स्क्वायर विल बिकम प्लस, लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6 लैम्डा माइनस ऑफ 4 लैम्डा greater than equals to 0, lambda square minus of 10 lambda plus 9 greater than equals to 0, right? Lambda square minus of 10 lambda plus 9 greater than equals to 0. Factorization can be done easily here. फैक्टराइजेशन तो आप कर पाएंगे सभी लोग, आप लोग लेकिन गलत सॉल्व कर रहे थे इसको, ये समझ में नहीं आया मुझे। लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करने में गड़बड़ हो रही थी क्या? चेक करिएगा सभी लोग प्लीज।
अब लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सुनिएगा इस बात को ध्यान से. हाउ टू राइट द रिजल्ट? हाउ टू राइट द रिजल्ट? वी हैव डिस्कस्ड द लीनियर इनइक्वालिटीज प्रीवियसली. और लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वेवी कर्व मेथड इज देयर. इफ यू हैव टू सॉल्व इन योर स्कूल एग्जाम, क्लास 11 की स्कूल एग्जाम में करना है, तो यू हैव टू फॉर्म 2 केसेस देयर. कौन से 2 केसेस? दोनों पॉजिटिव है एक केस. पॉजिटिव मतलब दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 1. और दोनों नेगेटिव है केस 2. और दोनों से फाइनल रिजल्ट निकालोगे दोनों का यूनियन लेते हुए, राइट? बट डायरेक्टली अगर बात करना है कर सकते हैं. वेवी कर्व मेथड इज ऑलवेज देयर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट द वेवी कर्व? देयर आर 2 रूट्स देयर. व्हिच आर द 2 रूट्स? 1 and 9. 1 and 9. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 9. भूल तो नहीं गए वेवी कर्व? भूले तो नहीं. टेक द राइट मोस्ट रूट, टेक द ग्रेटेस्ट रूट. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 9, पॉजिटिव. नेगेटिव, पॉजिटिव. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड. विच इंटरवल यू आर गोइंग टू लुक फॉर दैट? कौन सा इंटरवल लिखोगे आप? पॉजिटिव में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव. हाउ टू राइट दैट रिजल्ट? लेफ्ट टू राइट. माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग? इंक्लूडिंग. यूनियन 9 comma infinity. 9 with close bracket. Why? Because our requirement is greater than equals to 0. समझ रहे हो क्या? If roots are imaginary, ध्यान से देखिएगा. If imaginary roots are present, can you tell me the condition of D please? D less than 0. एक बात बताओ, D को फिर से सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है पूरा पूरा? ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड हियर. चेंज कहां होगा? लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 9 लेस देन 0. Is there any change in the wavy curve? Wavy curve में तो कोई चेंज नहीं ना. रिजल्ट में चेंज होगा. So what is that result then? Lambda is an element of less than 0, negative. पक्का? 1,9. Open bracket, close brackets. Open, because equal to 0 is not there. We want less than 0. आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता, लेट्स से थर्ड वन, इफ रूट्स आर, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर मैं कहता रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कैन यू टेल मी द रिजल्ट डायरेक्टली? शायद सभी लोग समझ पा रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब डी पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, राइट? सो रिजल्ट में 1 और 9 विद ओपन ब्रैकेट. बढ़िया, शायद सभी लोग समझ रहे हैं. ठीक. if roots are equal, if roots are equal, fourth one, d की वैल्यू 0. अब d की वैल्यू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? कहां से कहां तक? 1 से 9 तक. ओनली 2 वैल्यूज आर देयर, 1 and 9. बढ़िया. लेमडा इक्वल्स टू 1 एंड लेमडा इक्वल्स टू 9. दीज 2 वैल्यूज ओनली.
लेमडा इक्वल्स टू 1, लेमडा इक्वल्स टू 9। क्लियर है? अब रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल, इमेजिनरी, सारी बातें क्लियर होना चाहिए। रियल एंड इक्वल ना पहला ही सवाल है, लेकिन ये तो बेसिक्स हैं, फिर हर जगह लगने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, and find the equation whose roots are 1 minus alpha upon 1 plus alpha, comma 1 minus beta upon 1 plus beta. Find the equation find out करना है जिसके दो रूट्स हैं। ध्यान से देखिएगा। So if two roots are given, x square minus sum of roots into x plus product of roots equals to 0, that is the equation. हमारा टारगेट होगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना। एज फार एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स एंड दैट सम ऑफ रूट्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ b by a which is minus 2 by 3 and product of roots c by a which is nothing but 1 by 3. फाइन। ये तो हमें क्लियर है कि इक्वेशन जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, कैलकुलेशंस प्रॉपर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. So when I write sum of roots, वन माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट? सम ऑफ रूट्स यही होगा। सम ऑफ रूट्स इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है जो यूज करेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। ठीक, बोले सर अब क्या करना है? एलसीएम लो, सॉल्व करो, और क्या करना? 1 माइनस अल्फा मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये आपका टास्क रहेगा, आपका काम रहेगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस हैं वो आपको करना होंगी। और ध्यान रखिए प्लस माइनस सिंगल सी भी एरर अगर होगी तो रिजल्ट गलत आएगा, और रिजल्ट गलत आएगा तो क्या होगा? +4 का -1 होगा, क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। अब स्टेप मार्किंग की तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात नहीं हो पाती, बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जाम इज नॉट देयर। जो एग्जाम होता है क्वेश्चन टिपिकल आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं, टीडीएस आते हैं, लेकिन सिंगल ऑप्शन बेस्ड होते हैं वो तो, या मोर देन वन ऑप्शन भी रहते हैं, तो टिक मारना है आपको। अगर आपने सब कुछ ठीक किया लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर आपने ठीक नहीं लिखा तो नेगेटिव मार्क्स तो आपके पल्ले पड़ ही जाएंगे। टाइम तो अलग गया और नेगेटिव मार्क्स साथ में आ गए, तो वो रिस्की अफेयर है थोड़ा सा, मतलब है ना। अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे जैसे टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वो चीज़ जरूर इम्प्रूव होगी। चलो अच्छी बात है, लेकिन करना तो ज़रूरी पड़ेगा। सॉल्व कर लेंगे, बोले क्या करना? मल्टीप्लिकेशन करो, और क्या करना? ठीक है क्या? आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। अल्फा कैंसिल हो रहा है और बीटा भी कैंसिल हो रहा है क्या? अल्फा एज वेल एज बीटा बोथ आर कैंसल्ड हियर। चेक कर लीजिएगा प्लीज। जहां तक न्यूमरेटर की बात करें, 1 + 1 विल बी 2, माइनस अल्फा बीटा मतलब -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, वैल्यू प्लेस कर दोगे, और यहां पर 1 + अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अवेलेबल है 1/3, और अल्फा प्लस बीटा -2/3, तो रिजल्ट तो आना ही है। कर पाओगे क्या? इतना तो बनता है यार, बनता है ना? और बोले सर कर दो आप, 2 - 2 अल्फा बीटा, take the LCM. Can you tell me the result please? After taking the LCM, can you tell me the result?
सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? 2 माइनस 2 क्या? 2। ऑल ऑफ यू आ रहा है ना भैया समझ में सभी को? इफ आई से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट रूट्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की जगह तो मल्टीप्लीकेशन करना होगा आपको। राइट, 1 माइनस ऑफ, इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। राइट, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ 2/3, अल्फा बीटा विच इज 1/3, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ 2/3, अल्फा बीटा विच इज 1/3। कैन यू टेल मी द रिजल्ट आफ्टर सॉल्विंग दिस? 3 पक्का कर पा रहे हैं ना सभी लोग? समझ भी रहे हैं? तो दोस्तों सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, बात ही खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इज 2, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 इक्वल्स टू 0। राइट, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाती अल्फा और बीटा की, डायरेक्टली कर सकते थे फिर आप। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2, ऐसी कोई वैल्यू होती तो फिर आप डायरेक्टली काम हो जाता फिर तो आपका। पर करना तो यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। करना तो यही होता, ये बात तो ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग वन, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। इफ 2 प्लस रूट 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, फाइंड पी एंड क्यू। 2 plus root 3 is the root of the equation x square plus px plus q equals to 0 और p और q की वैल्यू पूछता है। Today only we have discussed the concept of irrational roots। अच्छा ये बताओ किस कंडीशन में आते हैं irrational roots? ये 2 plus root 3 कैसा रूट है? It's clearly irrational root, ये तो तय बात है irrational roots है। Irrational roots कब आते हैं? For what value of d? हमने आज ही बात चालू करी है। डी, हाँ डी पॉजिटिव हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि डी पॉजिटिव है परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स हो जाएंगे। डी पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इररेशनल रूट्स में होंगे। और इररेशनल रूट्स में एक और बात मैंने आपसे लिखी थी और वो ये थी, या स्पेयर्स में आते हैं। अगर इररेशनल रूट्स में a प्लस रूट ओवर बी इज वन ऑफ द रूट, अगर a प्लस रूट ओवर बी एक रूट है, a माइनस ऑफ रूट ओवर बी इज गोइंग टू बी द सेकेंड रूट, वो तो होना ही है, तय बात है। बात करी हमने है ना। इफ वन ऑफ द रूट इज a प्लस, भाई फिर से समझा दूं मैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए। मान लीजिए अगर ये ऐसा हो रहा है कि -2 प्लस माइनस रूट 19, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया एंड इफ यू आर गेटिंग लाइक दिस, तो रूट्स कैसे रूट्स हैं? डिस्कशन नहीं है। रूट्स है इरेशनल, -2 प्लस रूट 19 और -2 ऑकर्स इन पेयर्स, आना ही तय है। तो ठीक वैसे ही अगर ये 2 प्लस रूट ओवर 3, तो ज्यादा मत सोचिएगा, जो सेकेंड रूट होगा वो तय बात है कि 2 माइनस ऑफ रूट 3 होगा ही होगा। और अगर ऐसा होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स, या इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। एक बार फिर गड़बड़ हो गई ना। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट इज दैट सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स कितना होगा इसका? 4।
दोनों को ऐड करोगे तो √3 कैंसिल होगा, तो p की वैल्यू कितनी है? इट इज नॉट 4, इट इज -4। ऑप्शन में तो 4 भी होगा और -4 भी होगा, और आपने अगर 4 लगाया तो तुरंत बिना कुछ टाइम लगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तय बात है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 + √3, 2 - √3, a + b, a - b, a² - b² to 0। ठीक है, अभी सीखने का टाइम है, बढ़िया, अच्छी बात है। अभी एरर होती है, अच्छी बात है, एटलीस्ट एग्जाम में नहीं होगी। वैल्यू ऑफ p -4, वैल्यू ऑफ q 1। कंसेप्ट इरेशनल रूट्स की बात करेंगे तो इरेशनल रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स, और इमेजिनरी रूट्स भी आप आगे पढ़ोगे तो दोज आल्सो ऑकर्स इन पेयर्स। ठीक है ना? अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रेशनल नहीं हो पाएगा। एक और बात सुनना, एक इमेजिनरी है तो दूसरा रियल नहीं होगा, इमेजिनरी है तो दोनों इमेजिनरी होंगे। एक इरेशनल है तो दूसरा रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल भी पेयर्स में आएंगे। सही है ना? और अगर एक रेशनल है तो दूसरा भी रेशनल ही होगा, तय बात है। Now the question is, if the difference between the roots of the equation is given as x² + ax + 8 = 0, और कहा गया है difference between the roots of the equation is 2, difference between roots is 2, find a। दोस्तों रूट्स के बीच में डिस्टेंस की बात की गई है, मतलब एक्चुअली अल्फा माइनस बीटा इज गिवन एज 2। लेटर स्टेजेस में आप मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा में अल्फा माइनस बीटा को 2 लिख रहा हूं, मतलब ये मानते हुए कि अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है। यस, फिलहाल मैंने ऐसा मान लिया, बाद में आप समझेंगे तो मॉडुलस लिखेंगे इसमें, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। केयर, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज दैट सम ऑफ रूट्स? नो, इट्स नॉट a -a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8। अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है 2, सो अगेन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 4। तो इसलिए टेंशन नहीं है वेदर इट इज अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, जो भी आप लिखोगे स्क्वायर होगा तो बात तो सेम ही हो जाएगी। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को अगर आपको परेशानी नहीं हो तो लिख दें ऐसा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो उसके थ्रू बात करूंगा। तो अल्फा माइनस बीटा मुझे पूछता है वो, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर स्क्वायर कर दिया मैंने, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं भाई। a² + b² + 2ab माइनस ऑफ 4ab करोगे तो a² + b² माइनस 2ab बनेगा ना, बनेगा ना? तो दैट इज नथिंग बट a - b होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा माइनस a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इज 8 इक्वल्स टू 4 a स्क्वायर। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर? 32 + 4 36, so a is +-6, इट इज +-6। कोई बात नहीं, आप सही लिखिए, +-6। राइट, एंड लाइकवाइज वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इफ x² माइनस ऑफ px + q इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन में कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज यूनिटी। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज यूनिटी, और p और q में रिलेशन पूछता है वो। नाउ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x² माइनस px + q इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स कितना होगा भैया इसका? व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? p। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? ठीक है, जैसे पहले किया था सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसका यूज किया था एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। तो अल्फा माइनस बीटा इज 1 और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पक्का।
सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यूज करना चाहते हैं, राइट? अल्फा वैल्यू पुट कर दो यार, पी स्क्वायर माइनस ऑफ 4q इक्वल्स टू 1। रिजल्ट पी और क्यू के टर्म में रिजल्ट आ गया, ठीक है ना? डिफरेंस बस, दैट इज द ओनली पॉइंट एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। हमने ये समझ में आना चाहिए आपको कि सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है। हाउ कैन वी फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4, अल्फा माइनस बीटा, कैसे फाइंड आउट करना सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन हो तो, ठीक है?